सो और थिंग इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास 12th में कितने चैप्टर्स हैं? 12th में जो चैप्टर्स हैं वो है हेलो एल्केन्स एंड हैलोइड्स, वी हैव अल्कोहल फिनॉल ईथर, and there is aldehyde ketones and carboxylic acid and amines. तो चार चैप्टर, जस्ट लाइक हाइड्रोकार्बन 11 में एक चैप्टर था, वैसे अब चार चैप्टर्स वी हैव इन आवर कोर्स, ठीक है? एंड ऑल दीज चैप्टर्स रिक्वायर सम बेसिक प्रिंसिपल जो सब में बराबर लगते हैं, सेम लगते हैं. फॉर एग्जांपल when we talk about physical properties, when we talk about physical properties, what are physical properties? Physical properties होते हैं properties that we can observe without changing the chemical nature of the substance. For example, मैं किसी का melting point measure करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो जब water बना गया वो chemical change हुआ? नहीं, that is the physical change. तो अगर कोई chemical change ना हो और हम property को measure कर ले, this is called a physical property. And what are physical properties that we are looking for when we talk about organic chemistry? We are talking about boiling point, we are talking about solubility, we are talking about dipole moment. एक एक करके इन पे आएंगे. We are talking about melting point. Yes. So these are the properties that we have to look for in these chapters. और इन सब के क्या बेसिक रूल्स है that are same for all, वो हमें याद है. So let us start with first physical property, that is dipole moment or the polarity. What is physical properties? Anadi, ये बात clear है? And what we are going to study, is this clear, Anadi? Yes, sir. All right. Yeah. So let us talk about physical properties. The first property, you all have to write the notes. मैं चेक करूंगा अभी, ठीक है? मैं ऑनलाइन सब बच्चों के नोट्स मंगवाऊंगा, तो यू हैव टू मेक द नोट्स एज आई राइट. सो पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होती है? यस कार्तिक, एनी आइडिया व्हाट इज पोलैरिटी? हाँ हाँ बोलो. नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, लाइक दैट, ठीक है? तो अगर पॉजिटिव फुल नेगेटिव होता है आयनिक कंपाउंड में, एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी यूज पार्शियल चार्जेस. क्या यूज करते हैं? पार्शियल चार्जेस टू रिप्रेजेंट पोलैरिटी. पार्शियल चार्जेस रिप्रेजेंट कि देखो H और Cl ने दोनों ने शेयरिंग की बात करी थी, बिकॉज दिस इज एसेंशियली अ कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग कैसे होती है? 50-50. दैट मींस इस बॉन्ड का आधा इलेक्ट्रॉन इसने लिया, आधा इसने लिए, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी साइड खींच लेता है? Cl. तो Cl being more electronegative, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो वी आर सेइंग Cl is more electronegative, that means it has more tendency to attract the electrons towards it. और hydrogen is less electronegative or electropositive, we say. तो electronegativity का अगर difference होता है, there is development of partial charges and this is called polarity. तो अगर हमसे पूछे what is polarity, तो इसकी definition लिखेंगे हम, development of partial charges due to electronegativity difference. Development of partial charges in a molecule या in a bond due to electronegativity differences is called polarity. ठीक है? तो बॉन्ड वो पोलर होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है, वही बॉन्ड पोलर होगा, और दूसरा बॉन्ड पोलर नॉन पोलर कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, इफ द बॉन्ड वुड हैव बीन बिटवीन Cl and Cl, क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? नहीं. सो दिस इज अ नॉन पोलर, दिस इज अ नॉन polar and this one is a polar bond, right? यहां तक कोई डाउट किसी को?
ऑलराइट, क्या मेरी वॉइस लो आ रही है? नो सर। नहीं सर ठीक है। ऑलराइट, so Cl2 bond is non-polar but HCl bond is polar because of electronegativity difference, right? ये वाली बात तो क्लियर है। अब अगर हम बोले पोलैरिटी किस पे डिपेंड है, तो पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू होंगे, पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन two things. First is electronegativity difference. First is electronegativity difference, and second is direction of dipole. We'll understand it एक एक करके बात करते हैं। जैसे greater the electronegativity difference, greater is the polarity. Greater the electronegativity difference, greater is the polarity. For example, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें ज्यादा, उसमें पोलैरिटी ज्यादा, तो अगर हमें दिया जाए अरेंज इन इंक्रीजिंग पोलैरिटी, हर एक पार्ट को मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, ठीक है? तुम उन पार्ट्स को समझो। अरेंज इन इंक्रीजिंग पोलैरिटी, फॉर एग्जांपल वी आर गिवन H Cl H Br H R HCl, we are given HCl HBr. Although this is not an organic compound, but concept समझें कि कौन सा सबसे ज्यादा पोलर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें सबसे ज्यादा होगा, व्हाट डू यू से? सर हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड दूसरा HF। HF यू आर सेइंग सब HF लग रहा है सबको, क्यों? सर क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोर बिकॉज़ क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? अच्छा, जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज क्या है तुम्हारी? फोन। X जैसा फ्लोरीन ऑक्सीजन। अनादि जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज है हमारी फोन, ठीक है? हमारे स्कूल वाले, घर वाले भी ये बोलते हैं कि फोन छोड़ दो तो लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरीके की केमिस्ट्री की सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है फोन। F बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा F, देन O, देन F। अच्छा, लेट्स सी कि ये पीरियोडिक टेबल में कहां आते हैं फोन? टुवर्ड्स सर फ्लोरो क्रोमो ब्रोमो एंड किधर आते हैं ये? टुवर्ड्स राइट अपर हैंड कॉर्नर, लेफ्ट right अपर हैंड कॉर्नर, सर राइट अपर हैंड कॉर्नर। नोबल गैसेस को अगर हम छोड़ दें तो नोबल गैसेस को छोड़कर क्लोरीन यहाँ होता है नियॉन से पहले, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। दैट मींस कहना है कि ऐसे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होती है। यस सर। क्लोरीन के नीचे भी आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राइट? तो क्लोरीन के बाद नीचे जाते हैं तो क्लोरीन के, वैसे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, देन वी आल्सो हैव क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन जस्ट आफ्टर फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा उसमें होगा क्योंकि क्लोरीन इज कांस्टेंट और F बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, राइट? तो दैट मींस HF इज मोस्ट पोलर। उसके बाद कौन? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। then HBr, and सबसे कम पोलर will be H। अच्छा। Vansh, is this clear? Rani, is this clear? यस सर। संस्कृति, Yes, sir. Yuvraj? अनादि कोई डाउट? No, sir. Alright. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यू थिंक कि तुम्हें क्वेश्चन ये कंसेप्ट आ गया है? तो लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन जो कि हेलो एल्कीन्स एंड हेलोरीन्स का है, ठीक है? कंसेप्ट समझना है हमें। क्वेश्चन बी, which is more polar and why? Which is more polar and why?
साइक्लोक्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बनाना है। बेंजीन हैज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, उसको सर्कल्स नहीं बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज दिस इज साइक्लोहेक्साइल। तो अब हमें इन दोनों में से बताना है विच इज मोर पोलर एंड वाई। तो कौन इसका आंसर देगा? रेज योर हैंड। यस ट्राई करो, कौन करना चाहेगा आंसर? ओके, गुरशान इज राइट। गुरशान सर, कौन लग रहा है? क्लोरोबेंजीन सर, और यस सर, साइक्लोहेक्साइल। सर क्लोरोबेंजीन लग रहा है। क्लोरोबेंजीन। एनीवन हैविंग अ डिफरेंट आंसर? ये सबको क्लोरोबेंजीन ही लग रहा है? क्लोरोबेंजीन। लॉक कर दे। तुम्हारा माइक ऊपर है गुरशान। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तो मुझे नाराज ज्यादा लग रहा है, तो ये ज्यादा खुला है, ऐसा लग रहा है? इज दिस द रीजन? उसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल है। चलो ये पॉइंट है। डबल सिंगल से फर्क क्या पड़ता सर डबल बॉन्ड को जो क्लोरीन है ज्यादा अच्छी तरह खींच पाएगा तो ज्यादा डेवलप होएगा यहाँ पे पार्शियल है? चार्ज। अच्छा, डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है वो sp2 sp3 क्या होता है? सर डबल बॉन्ड वाला सर sp2 होगा। सर sp3 और सिंगल बॉन्ड इज sp3। 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमने 11th में पढ़ा है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और क्यों होता है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हो सकता है समझ में आया, अगर 11th अच्छे से नहीं करी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है sp सबसे ज्यादा, then sp2, then sp3। तो जिसका S कैरेक्टर कम होता है, यस, वेरी गुड। sp में 50% s कैरेक्टर है, इसमें इसमें 33% s कैरेक्टर है, 33%, इसमें 25% s कैरेक्टर। तो s कैरेक्टर यानी जितना s और p से मिलके बने हैं, s होता है ये, p होता है ये। तो सर क्लोरोबेंजीन का और पोलर S होगा। जो है, अभी मेरी बात मैं बोलना खत्म हुआ तो बोलना काटती, ठीक है? S और P में से S छोटा है साइज में, तो छोटा होने की वजह से इट इज एबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर। तो S इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। P में कम। अब बोलो कार्तिक, क्या बोलना चाह रहे हो, पूछो। तो सर आई वाज थिंकिंग तो फिर ऐसे क्लोरोबेंजीन लेस पोलर होगा, क्लोरोहेक्साइल क्लोराइड ज्यादा Reason? पोलर होगा। यस कार्तिक, रीजन? सर क्योंकि इसका S कैरेक्टर कम हुआ, लाइक जिसका S कैरेक्टर कम होता है वो ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके लिए फिर नहीं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड, ये गूगल का आंसर लग रहा है मुझे। एक बार मुझे बताओ क्या। सर जैसे इसका S कैरेक्टर 50% है, इसका एस कैरेक्टर इसमें है, sp2 में कितना? SP sp2 में कितना? क्लोरोबेंजीन में सर sp2 इसका सर 33% होगा, क्लोरोबेंजीन 33%, ठीक है। sp3 में 25% होगा सर, क्लोरोहेक्साइल क्लोराइड। 25%। हाँ, आगे एक्सप्लेन करो, क्या करना चाह रहे हो? सर अब sp2 है, इसलिए इसका S कैरेक्टर कम है। एस कैरेक्टर ज्यादा नहीं, 33। सर sp3 से कम है सर, sp3। हाँ जी, गूगल सर देखो, झूठ मत बोलो। गूगल, यस और नो? नो सर, S कैरेक्टर तो पता है सर, लैंग्वेज। हाँ हाँ, बताओ। इसका sp2 का 33%। ओ ओ, सही तो 25% sp3 का। हाँ, आगे एक्सप्लेन करो कार्तिक। सर सही तो बोल रहा हूँ मैं। किसका एस कैरेक्टर ज्यादा, sp2 sp3? sp2 का सर, sp2 हाँ, का कैरेक्टर फिर- ज्यादा है, sp3 yes, का कम है। आगे। तो सर जिसका sp कैरेक्टर कम होता है उसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो sp3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन। इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जिसका सर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने लिखा था, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे पोलर कम ज्यादा होता है। हाँ ज्यादा होता है, और जो लेस तो वैसे ही। ठीक है, तो कौन ज्यादा पोलर हुआ? सर पार्डन सर,
फिर पोलर कौन ज्यादा हुआ, क्लोरोबेंजीन या साइक्लोहेक्साइक्लोराइड? सर हेक्साइक्लोराइड। अरे तूने बोला इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा पोलर, ये बोला था ना तुमने कार्तिक? यस सर। हाँ, तो कौन ज्यादा पोलर हुआ? सर बेंजीन होगा ना? क्लोरोबेंजीन। तो तुमने हाँ। साइक्लोहेक्साइक्लोराइड क्यों बोला? सर मैंने sp3 आप कंफ्यूज कर रहे थे हाँ, तुमने बोला देखो पोलर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यस सर। ये ज्यादा पोलर। यस सर। तो आंसर ये है या ये है? सर बेंजीन होगा, क्लोरो इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो तो क्लोरोबेंजीन सर इसका ये हाँ। मोर पोलर। यस? यस सर। नहीं, तुम्हारा आंसर पहले से साइक्लोहेक्साइक्लोराइड मोर पोलर है। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, वो सारा नहीं, मैं सही बोल कंफ्यूज नहीं रहा किया, मैं तो तुम्हारे फैक्ट्स जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। द थिंग इज, जब गूगल से आंसर देखते हैं तो हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते टीचर, बस ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नो सर, तो ऐसा नहीं, मैं सही अब बोल रहा सुनो मेरी बात, यहाँ तक बिल्कुल सही बोला इसने कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम ये चीज सोचे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पोलर, तो क्लोरोबेंजीन ज्यादा पोलर होना चाहिए। पर तुम एक शब्द को मिस कर रहे हो, ये कंसेप्ट है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं? क्या देखते हैं? डिफरेंस। यानी हमें डिफरेंस देखना है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना। जो अभी कार्तिक देख रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहा है, वो आंसर ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है, पर उसका दिमाग उसे ये बोल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, तो ये ज्यादा पोलर होना चाहिए। पर ये नहीं देखना हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और डिफरेंस तब पता चलेगा, जैसे क्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन से, क्योंकि फोन के बाद कौन आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तो कार्बन से इन एनी केस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये क्लोरीन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस और नो? ठीक है, तो क्लोरीन तो दोनों केसेस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किसमें डिफरेंस ज्यादा है? साइक्लोहेक्स। सर एग्जैक्टली। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट? ठीक है, पॉइंट इज दिस कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखनी है और गूगल भी देखना। ठीक है, तो आंसर इसका हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर इज दी पोलैरिटी, ये तो हमने लिखा है। यस, मुझे रिपीट कर सकता हूँ, आई कैन रिपीट, किसी को डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगा। अनादि, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir, it's clear. अच्छा, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ग्रेटर इज दी पोलैरिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर इन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर in CCl bond of cyclohexyl because its carbon लिखना है आपको, because its carbon is sp2 hybridized, sorry, its carbon is sp3 hybridized, which is less electronegative than carbon of benzene, chlorobenzene, which is sp2 hybrid. Yes, कार्तिक क्लियर? कार्तिक चला तो नहीं गया? नो सर। हाँ, क्लियर कार्तिक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर नोट डाउन कर लो। नोट कर जल्दी। Yes, all right. So next part
अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर पोलैरिटी. नोट डाउन. Polarity depends upon first what? Electronegative difference. Second, it depends upon. और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में हमने 2 क्वेश्चन करे, दोनों से मैंने कंसेप्ट समझाया. एक HCl HBr HIR. Yes, so we have done 2 questions in electronegative difference. Second polarity के अंदर केस आता है. Polarity depends upon second thing is direction of dipole. किस पे डिपेंड करता है? Direction of dipole. Dipole माने जो पॉजिटिव नेगेटिव का एक बॉन्ड है उसको डाइपोल. तो लेट अस सी, अगर ये कंपाउंड हो CCl4, क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस है? यस है. कार्बन और क्लोरीन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन. तो ये बॉन्ड्स हमेशा बनते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड. पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड. पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, राइट. तो ये बॉन्ड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल की बात कर रहे हैं हम. तो ये जो डाइपोल की डायरेक्शन है, अच्छा इसमें क्या लगता है, ये 3 क्लोरीन इसे नीचे खींचेंगे तो ये पोलर होगा, या ये नीचे जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, या नहीं जाएगी कहीं? नॉन पोलर होगा. नॉन पोलर होगा. नॉन पोलर क्यों होगा वंश? सर जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 आएगा ना. नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा कि चारों सेम साइड अलग अलग साइड से खींचे. तो ये 3 नीचे वाले, क्या ये तीनों पास होते हैं या तीनों दूर होते हैं? मतलब बराबर दूर होते हैं जितना ऊपर वाला दूर है? सब बराबर है. बराबर. सब में एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री. इट्स लाइक हमने पहले भी किया हुआ ये डाइपोल मोमेंट. जब हमने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को देखा है तो इट्स लाइक दिस इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, राइट. और इसके अंदर कोई भी बॉन्ड एक दूसरे के पास नहीं है. ऑल ऑफ देम आर इक्वली प्लेस्ड. तो चाहे मैं इसको ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, सबके बीच में बराबर ही एंगल है. बट व्हेन वी ड्रॉ इट ऑन द पेपर वी सी कि 109.5, मतलब कि ऐसा लगता है कि वो 3 नीचे की साइड वाले जो है दे आर क्लोजर एंड वन इज अवे, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम एंगल. यू कैन स्विच एनी ऑफ देम एंड यू विल हैव द सेम फिगर. ठीक है, समझ में आ रही है नंबर? तो that is why we are saying कि direction of dipole यहाँ पर हमें जरूरी है. This compound is non-polar because it is non-polar as dipole moment जो एक measure करने के लिए quantity use होती है polarity को, वो कहलाती है dipole moment. तो dipole moment is used to measure polarity. Is used to measure polarity. Polarity को measure करने के लिए use किया जाता है. It is non and it is a vector quantity. It is what? It is a vector quantity. It is non-polar because dipole moment, the resultant dipole moment is 0. वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन से कट हो जाती है अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे आएगा और ऊपर वाले का ऊपर है, तो ये सारे कट हो जाते हैं. इट इज बिकॉज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज 0. तो ये वाली बात समझना है, व्हाई CCl4 इज नॉन पोलर. यस और नो एवरीवन? नो. यस सर. यस. अच्छा, अब मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूं. अरेंज इन इंक्रीजिंग पोलैरिटी. सर वैसे प्रीवियस के लिए दिखा सकते हो? अभी पहले क्वेश्चन लिख लो फिर मैं दिखाता हूं.
CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। ठीक है, इनको पोलैरिटी के बेसिस पे अरेंज करना। लिख लो, क्वेश्चन शुरू करो, मैं दिखाता हूँ पीछे का स्क्रीन। यस, यस, कोई इसका आंसर करना चाहेगा, रेज योर हैंड। हाँ वो CH3Cl, CH3Cl सबसे ज्यादा। ठीक है, पर क्यों, रीजन? हाँ हाँ, खुशी तुम बोलो। CH3Cl, क्यों क्यों इसमें Cl की साइड जा रहा है? देखो, इन सब के डायग्राम सिमिलर बनेंगे, टेट्राहेड्रल है, सो वी विल गेट इट लाइक दिस, CH3Cl। ठीक है, अकेला है। तो पॉइंट इज दिस कि Cl सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ताकतवर ग्रुप। ठीक है, अब जितने ताकतवर ग्रुप होंगे वो सारे अपनी साइड खींचेंगे, है ना। और क्योंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके अंदर डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सबसे पावरफुल वाले की साइड। C और H में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव C, एंड ये C Cl को देगा। सबका डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट का है ऊपर। अच्छा, इन दोनों में, इन केसेस में C और H में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव C, और इन दोनों में Cl और Cl। दो ताकतवर होने से जो एक साइड, किसी भी साइड पे वो नहीं, वेट ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कट जाएगा, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कम हो जाएगा। On the other hand, अगर 3 Cl bonds we have, if we have 3 Cl bonds, तो जितने Cl bonds होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कट करते जाएंगे एक दूसरे की, क्योंकि तीन ताकतवर ग्रुप तीनों अपनी डायरेक्शन में खींचेंगे तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पोलर होगा जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, जिसमें दो होंगे उसमें कम, और जिसमें तीन होंगे उसमें कम, और CCl4 में और भी कम, सबसे कम नॉन पोलर। पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इससे हम ये समझते हैं एक होना चाहिए, अगर एक भी नहीं होगा फिर भी नॉन पोलर होगा वो। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, बाकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो पोलैरिटी मैक्सिमम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, क्लोरीन बढ़ते जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट कटता जाएगा, रिजल्टेंट कम होता जाएगा, तो भी पोलैरिटी कम हो जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस और नो? यस, ऑनलाइन एवरीवन क्लियर? कनिष्का क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। तो पोलैरिटी कंप्लीट हुआ। पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, नोट कर लो। पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग। The second physical property is boiling. What is boiling? देखो, boiling point is when you break the intermolecular forces that exist between the molecule. किसी चीज को गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए what do we have to break? We have to break the intermolecular forces. और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एक ऐसा नाम
जो कॉमर्स वाला ना भूल पाए, थोड़ा सा फैंसी टर्म, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमें कहाँ भेज देना है? यस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर इन्हें कहाँ भेज देना है? गैस। ये बॉइलिंग है ना, लिक्विड को क्या करना है? बॉइल करना है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है। ठीक है, हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं ये वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पर हमने 11th में इसको ऐसा बदल दिया कि कॉमर्स वाले को तो पता ना चले, जब हम बात करें सोशल साइंस वाले तो कॉमर्स वाले को पता ना लगे। तो उसका क्या नाम था मुझे बताओ? वंडरवॉल फोर्स। वॉन्डरवॉल। क्या बोलते हैं उसे? वॉन्डरवॉल फोर्स इज द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बस हमने नाम बदल दिया सो दैट हम साइंस के लगे, पर अभी हम है नहीं साइंस के, हमें भी पता है अंदर से, है ना। तो वॉन्डरवॉल फोर्स इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब अगर मुझे वॉन्डरवॉल फोर्स किसी के बीच में ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर उनका वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। और अगर वॉन्डरवॉल फोर्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सारा बॉइलिंग पॉइंट को हमें वॉन्डरवॉल फोर्स से देखना है। किससे देखना है? वॉन्डरवॉल फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट माने हम बात कर रहे हैं कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, फॉर एग्जांपल, सीधा एग्जांपल से ही हम क्वेश्चन कंसेप्ट को समझेंगे। सपोज ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, मीथेनॉल, तो ये तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसमें होने वाला है? जिसमें कार्बन ज्यादा है। तो वी हैव ब्यूटेनॉल, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने वाला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट, उतना जैसे मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, वॉन्डरवॉल फोर्स जो है ना, इट्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना चार्जेस ज्यादा होते हैं उतने फोर्स बढ़ते हैं। इट्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 m2, मास जब बढ़ता है दोनों का तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। इसीलिए मॉलिक्यूलर ये भी फोर्स उनसे कुछ अलग नहीं है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी मॉलिक्यूल के मासेस पे डिपेंड करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस ऑफ द प्लैनेट्स पे डिपेंड करेगा, m1 m2, उसी तरीके से वॉन्डरवॉल फोर्स भी मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, वैसे ही उसका वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा। ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट, ग्रेटर इज द वॉन्डरवॉल फोर्स, और वॉन्डरवॉल फोर्स ज्यादा तो ग्रेटर इज द बॉइलिंग। ये बात कुछ समझाने की तो नहीं है? क्लियर है ये पॉइंट? सेकेंड पॉइंट पे चल सकता हूं मैं। सेकेंड पॉइंट इज ब्रांचिंग। If you want me to repeat, please say repeat. You can reply on chat. ठीक है। अच्छा, ब्रांचिंग की बात करते हैं। ब्रांचिंग इसमें ज्यादा, अच्छा अगर मॉलिक्यूलर वेट इज सेम देन वी सी ब्रांचिंग। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है तो ही हम ब्रांचिंग को कंसिडर करते हैं। If molecular weight is same, then we consider branching. तो ब्रांचिंग में ये बात समझो, ब्रांचिंग में सपोज वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स है। वन इज इन पेंटीन, नॉर्मल पेंटीन, so we'll say normal painting. Then we have isopainting. Then we have neopainting. अच्छा, देखने से क्या लग रहा है ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है? आइसो, नियो, नॉर्मल? नियो में ज्यादा। अच्छा, किसकी शेप स्फीयर की तरह होगी? नियो की, है ना। तो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल टेक्स शेप ऑफ अ स्फीयर,
as branching increases वो स्फीयर की शेप लेता रहता है मॉलिक्यूल। इसको अगर हम 3D में देखेंगे तो स्फीयर में ऐसे थोड़ा सा वो घूम जाएगा, तो जब वो स्फेरिकल शेप ऐसे तो सर्कुलर दिख रही है यहाँ पे, वैसे ही स्फेरिकल भी ले लेगी शेप ज्यादा। तो अब ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो स्फीयर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है या कम? कम। मैथ्स थोड़ी सी पढ़ो, और ऐसे तुम दोनों के पास मैथ्स ठीक है, पूरे पास तो है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये सबसे लीस्ट है ऑफ एनी फिगर। और कोई 3D फिगर बनाओगे तो उसकी हमेशा इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। तो पॉइंट इज दिस की दिस इज लीस्ट सरफेस एरिया। जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो स्फीयर के पास जाते हैं और सरफेस एरिया बिकम्स लेस। अगर सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया में तो सारे अट्रैक्शन होती है, ये देखो इन दोनों की सरफेस एरिया कांटेक्ट में ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर मैं इनकी कांटेक्ट में सरफेस एरिया बस बहुत कम कर दूं तो इनके बीच में वाटर वॉल फोर्सेस कम हो जाएंगे, इसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया टच में ज्यादा है। अगर इसका सरफेस एरिया कम है तो आई कैन से देयर इज लेस वाटर वॉल फोर्स, और लेस वाटर वॉल फोर्स तो लेस बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? लेस। सबसे ज्यादा किसका हुआ? इन्फिनिटी, देन आइस, देन हाँ बोलो, क्योंकि वो स्फीयर की शेप लेगा और स्फीयर का सबसे कम होता है। अच्छा, वाई वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, इसका भी सेम आंसर होता है। पानी की बूंद स्फेरिकल क्यों होती है जब वो गिरती है? वो स्क्वायर रेक्टेंगल मतलब क्यूब क्यूबॉइड ऐसे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया कम होता है और वाटर में सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन उसे खींच के सबसे लीस्ट सरफेस एरिया में ले आता है। तो पॉइंट इज दिस कि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, इसीलिए ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। सबसे ज्यादा किसका हुआ? इन्फिनिटी। पर इन सब का मॉलिक्यूलर वेट सेम था क्योंकि दीस आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ब्रांचिंग इज क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, देन थर्ड पे आते हैं। जिससे मॉलिक्यूलर वेट सेम हो उसमें ब्रांचिंग को कंसीडर करो। एक एग्जांपल करो, ठीक है। अच्छा, अरेंज इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है, ठीक है। ये हाँ इथेनॉल 2 methyl प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 methyl ब्यूटेनॉल, 2 methyl ब्यूटेनॉल, we have 2,2 dimethyl propanol, we have methanol, ठीक है। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना, एंड देन वी हैव पेंटेनॉल। तो हाउ डू वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर? मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं। इथ माने कितने कार्बन? 2। ब्यूट माने, प्रोप माने, मिथ, और पेंटेन माने 5। अल माने CHO, तो इनमें से एक को CHO बनाओ, टर्मिनल भी लगता है, ठीक है। बाकी He का कंप्लीट करने हैं तो करे जाएंगे। CH3 CHO, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 H CHO, ठीक है। हम मॉलिक्यूलर वेट की बात, अगर कार्बन और फंक्शनल ग्रुप सेम है उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम ही हो। अगर 2 पे मिथाइल लगाना, सॉरी, तो इसको लगाते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल,
2 पे मिथाइल, इसमें 2 और 2 पे डाइमिथाइल, ये छड़ ये और इसके अंदर ब्यूटेनॉल भी डाल दें इसमें। चलो कोई नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, इसको कैसे अरेंज करें? तो पहले मॉलिक्यूलर वेट देखना है या ब्रांचिंग? मॉलिक्यूलर, यस मॉलिक्यूलर वेट भी आपको। इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन का एरिया है, ये 1 कार्बन का एरिया है, ये 5 कार्बन का एरिया है, ये 5 कार्बन का एरिया है, ये 5 कार्बन का एरिया है, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा? जिसके अंदर 1 कार्बन, तो सबसे कम हो गया मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल सबसे कम। फिर 2 कार्बन इथेनॉल, इथेनॉल, फिर अगर प्रोपेनॉल होता तो प्रोपेनॉल आता, ब्यूटेनॉल होता तो ब्यूटेनॉल आता, पर अब हमारे पास तीनों 5 के हैं, 1 2 एंड 3, तीनों में 5 हैं। पेंटेनॉल आएगा। नहीं, देखो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग जिसमें है उसका सरफेस एरिया सबसे कम, और सबसे कम तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट कम। दिस विल बी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। अच्छा, देन वी हैव 2 मिथाइल 2 मिथाइल, ब्यूटेनॉल, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग। और लास्ट में भी यहाँ पेंटेन। Gushan Vansh, is this clear? Yes, sir. संस्कृति, युवराज, कनिष्का, ऑलराइट। तो ये हमारा हुआ बॉइलिंग पॉइंट, 2 पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट भी कितने पॉइंट करे हमने? मॉलिक्यूलर वेट, और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो ब्रांचिंग देखनी है, ये बात क्लियर। थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी। पोलैरिटी पे डिपेंड करती है बॉइलिंग। जो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो एक सिंपल सा ऑर्डर दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th में। एल्केन सबसे कम पोलर होते हैं क्योंकि अंदर OH, FH, NH बॉन्ड कुछ है नहीं, ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स है। एल्केन से ज्यादा पोलर है ईथर, ईथर से ज्यादा पोलर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा पोलर है एल्काइंस, अमाइंस, अमाइंस से ज्यादा पोलर है अल्कोहल्स, अल्कोहल से ज्यादा पोलर होते हैं एसिड्स। मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तो ये ऑर्डर फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि एल्केन में सिर्फ C और H के बॉन्ड्स हैं। अगर C और H के बॉन्ड्स हैं तो इनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो पोलैरिटी हमने सीखे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से होती है, जो कि इनमें नहीं है, ये नॉन पोलर है। अच्छा, ईथर्स ऑन द अदर हैंड कैन बी पोलर, राइट, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे वाटर पोलर है H2O, उनकी जगह पे H की जगह पे CH3 ग्रुप्स है, ठीक है, तो ये पोलर है पर थोड़े से, ठीक है, ज्यादा है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। एल्डिहाइड कीटोन्स CHO ग्रुप में अगेन इसमें OH, FH, NH बॉन्ड नहीं आते, O और H आते हैं पर अलग अलग आते हैं, O और H साथ में नहीं है। OH, FH और NH बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? तो ये तीनों जिनमें OH, FH, NH बॉन्ड देखने को मिले वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है विच इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी की क्या एक्सट्रीम फॉर्म है? क्या चीज, क्या कहां पे आएगा? वाटर, वाटर कहां है? एल्कोहल्स और अमीन्स के बीच आना चाहिए, ठीक है, बट देखना पड़ेगा। हाँ, अब एनीवेज ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड उनमें होता है जिनमें NH, OH, FH बॉन्ड हो,
हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है हम जल्दी देखेंगे, दोबारा रिवाइज कराऊंगा इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स having OH, FH and NH, जिनमें OH, FH, NH बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और उनमें से कौन है? अमीन्स, अल्कोहल्स एंड एसिड्स। तो अगर मैं तुम्हें अरेंज का क्वेश्चन दूं, अरेंज इन इंक्रीजिंग पोलैरिटी, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ग्रेटर द पोलैरिटी ग्रेटर द वॉन डेर वाल्स फोर्स, ये बात तो लिखना भूलिए। ग्रेटर द पोलैरिटी greater is the van der Waals force and greater is the boiling point. हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ वो बोल रहे हैं कि अभी डेमो के लिए छोड़ रहे हैं, मिलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो बुला लो। और वहाँ पे ना रूम में अभी 5 बजे हिस्ट्री क्लास, तो आप कर दो, वहाँ पे जरूरी ना हो, ठीक है। कौन सा वाला? इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में इसके अंदर पार्ट्स हैं हमारे। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में पहला है हमारा इथेनॉल, इथेनॉल, इथेन, मिथॉक्सीमिथेन एंड इथेनोइक गैस, मिथॉक्सीमिथेन एंड इथेनोइक गैस, ठीक है। इनको अरेंज करेंगे 2 मिनट में मैं सबसे पहला इंडियन ऑक्सीजन होगा, सबसे बड़ा इसके बाद होगा इथेनॉल, उसके बाद होगा उसके बाद इथेनॉल, हो गया। रिप्लाई इन चैट, चैट में लिखो आंसर, कम ऑन। और मुझे सबके नोट्स चाहिए आज के ऑनलाइन, जो जो भी बैठे हैं वो घर पे अपना पीडीएफ बनाएं और जो आज मैंने लिखा है उसके नोट्स दिखाएं। यस सर कौन से नंबर पर भेजना है? जिस नंबर से लिंक मिला है तुम्हें उसी पे भेज दो। सर लिंक तो आया ही नहीं। लिंक नहीं आया, जो जो मेन नंबर है जिसमें तुम बात कर रहे हो। अच्छा एक्चुअली आई मैं इसका आंसर
तुम्हारे नोट्स से चेक करूंगा, ठीक है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।